Very good afternoon to one and all. Welcome to English class. In today's class, what we will be doing the chapter The Sermon at Benares. The Sermon at Benares. Sermon, what is the meaning of sermon? Means you can call religious lecture. What is the meaning of sermon? Means religious lecture. ये जो lecture होता है religious या preach करना, जब वो preach करते हैं, sermon का मतलब क्या होता है? एक religious धर्म के बारे में ये जो बताया जाता है रिलीजियस लेक्चर आप कह सकते हैं. ओके ओके आई एम presenting my screen. Is my screen visible to all? Show me your thumb sign like this, please. Okay, Pranjal Sahu, would you like to read? I give you a chance. Yes, ma'am. Gautam Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scripts, and 4 years later, he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, changed upon a sick man, then a aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he had vowed to stay. So this chapter is about Gautam Buddha. As everybody knows, Lord Buddha. Lord का मतलब भगवान जो बुद्धा है, उनको ये जो बुद्ध नाम क्यों दिया गया है? What is the meaning of Buddha? Basically, what is the meaning of Buddha? Buddha means enlightened one. Enlightened one means जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया. Enlightened means knowledge. In this chapter, we will be doing in detail about, not detail, little bit about Gautam Buddha, how his life changed, what happened, why he chose to be as a monk, what was the reason behind this. Gautam Buddha, he was born in 563 BC to 483 BC. BC stands over here, means before Christian era hota yug. Began life as a prince named Siddhartha. Actually, he was born in a royal family in northern India. North, east, west, north, south. ये है ना पार्ट्स इंडिया के, तो कहाँ पे बॉर्न हुए वो? नॉर्दर्न. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. Scriptures होते हैं छोटे छोटे जो ग्रंथ होते हैं, उनको बोलते हैं. Sacred means holy. उनको स्कूलिंग के लिए 12 साल की उम्र में भेजा गया. He was sent away for schooling, and 4 years later he returned home to marry a princess. It means at the age of 16 he got married to Yashodhana. What was the name of princess? Yashodhana. यशोधना उनकी वाइफ का नाम था. दे हैड अ सन. अब उनका एक सन भी था. क्या नाम था उसका? राहुल. दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years. बिफिटेड मीन्स पूरी ये जो एक सूटेबल होती है, जो चीज सूट करती है, एक रॉयल लाइफ उन्होंने जी. मोर ओवर what his parents want, that they wanted to keep their son in a royal way. वो एक रॉयल वे में ही उनको रखना चाहते थे. सो एक ऐसा एक पैलेस था जिसमें उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर जाएं, सो दैट ही मे कम टू नो द सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ द पीपल. लोगों को कहीं ये नहीं है कि कहीं उनका ये जो ध्यान है एकदम से क्या हो जाए, भटक जाए, कि ये जो लाइफ क्या है, क्यों ऐसी चीज उनके मन में क्यों आई. What was the reason? क्या रीजन था उनके behind? What was the reason behind this? अब ऐसा क्यों सोच रहे थे? Why they were thinking about this? Because एक सेंट ने प्रिडिक्शन करी थी. सेंट था, उसने प्रिडिक्शन when he was born, you will be blessed with the son, means जिसके बारे में बुद्ध की बात हो रही है, गौतम बुद्ध के बारे में बात हो रही है. उनके पेरेंट्स को बोला you both will be blessed with the son. Either he will be ruler, या तो वो रूल करेगा पूरे वर्ल्ड में, या तो फिर एक सेंट बनेगा.
मीन्स मॉन्क बन जाएगा जो घर बार बिल्कुल ही त्याग देगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा ठीक है इट्स बेटर, तो उन्होंने एट द एज ऑफ 25 दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years। अब वो ठीक है पहले 10 years तो लाइफ के बहुत अच्छे लीड किए। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस theretofore shielded फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द शील्ड। 25 साल तक क्या है उन्होंने किया, heretofore बिफोर, इससे पहले क्या उनको शील्ड किया गया। सपोज व्हाट इज द शील्ड, शील्ड का मतलब है उनको प्रोटेक्ट किया गया। सफरिंग्स, ये जो दुख है ना, सोरोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरिंग, सफरिंग्स का मतलब है सोरो, कि दुख से बचाया गया, कि दुख से कैसे ना कैसे बचाया जाए, बिकॉज वो प्रिडिक्शन हो चुकी थी ना, इसलिए प्रिडिक्शन हो चुकी थी, राइट। वाइल आउट हंटिंग chanced upon a sick man, जब वो हंटिंग पे निकले, एक पर्सन था। chanced upon का मतलब क्या होता है, meet by chance, meet by a chance, अचानक से क्या किया। बेटा am I audible to all, आवाज आ रही है ना सभी को, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक सिक मैन को उन्होंने देखा। देखो उन्होंने हाउ मेनी व्यूज, कितने व्यूज देखे, कितने उन्होंने देखे, हाउ मेनी, कितने देखे, 4 4 तरीके के देखे। जब वो हंटिंग पे गए, सिक मैन को देखा, सिक सिक था, एक बड़ा बीमार आदमी, सिक मैन था। फिर एक बहुत बूढ़े आदमी को देखा। फिर एक फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स व्हेन पर्सन डाइज ही इज टेकन टू द cemetery और लाइक वेयर ही इज buried। एंड फाइनली अ मॉन्क, एक फिर देखो मॉन्क, मॉन्क क्या होते हैं, दे उनके कभी घर नहीं होते, दे नेवर बिल्ड देयर ओन हाउसेस, सो द रेस्ट ऑफ लाइफ इज लेड बाय बैगिंग ओनली। आर्म्स का मतलब क्या है, बैग करना, भीख मांगना। दी साइट्स, ये जो साइट्स थी, ही गॉट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सी। मतलब ही इज यू नो व्हाट हैपेंड, लाइक दी साइट्स मूव्ड हिम, बिल्कुल एकदम से चेंज आ गया। देयर वाज अ एंटायरली चेंज इन हिज बिहेवियर आफ्टर सीइंग 4 साइट्स, बिल्कुल सब कुछ। To seek enlightenment concerning the sorrows, enlightenment, he wanted to get the knowledge. What is the meaning of enlightenment? Means knowledge. He wanted to get knowledge. Sorrow, I mean what is the reason behind the sorrow, sufferings he had witnessed। witness का मतलब क्या है, उसने ये जो 4 दृश्य देखे, बहुत ज्यादा, मतलब his heart moved concerning the sorrows he had witnessed। he wandered for 7 years, कितनी देर तक वो रहे, 7 साल तक वो he wandered for 7 years and finally sat down under a people tree। पीपल के फिर कहां पे गए, एक्चुअली उनको ही गॉट एनलाइटमेंट अंडर पीपल ट्री। बनारस में गए तो वहां पे उनको एनलाइटमेंट मिला। वहीं से जब उनको एनलाइटमेंट, व्हेन ही गॉट एनलाइटमेंट ही वाज बुद्धा। बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। हाँ जी बेटा, इतना समझ में आया। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वोड, वो का मतलब क्या होता है, ही वोड टू स्टे, उसने कसम खाई until enlightenment came, वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक enlightenment नहीं मिलेगा। सूरज प्लीज रीड करिएगा बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ, द चाइल्ड हु हैज लॉग्ड इन विद द नेम ऑफ सूरज। कैमरा मत बंद करो, जसवंत सिंह अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अनम्यूट। राजवीर सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ जी, राजवीर पढ़िएगा। मैं कहाँ से मैम? Enlightened after 7 days. I think you have just joined. In this chapter, what we are doing in this chapter, we are learning about, we are getting details about Lord Buddha, right? So this chapter is mainly about Lord Buddha. हाँ जी, enlightenment after 7 days. पढ़िए यहाँ से, हरिया बेटा। राजवीर, आवाज नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट योरसेल्फ। राजवीर अनम्यूट करिए। Enlightened after 7 days. He remained Enlightened, that बेटा enlightened. enlightened after 7 days. He renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to teach
and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, awakened or the enlightened. The Buddha preached his first sermon Sermon. at the city of Benares, most holy of the dipping place on the river Ganga. That Ganges, ceremony, Ganges, Ganges, not Ganga. Ganges. Pronunciation. Ganges, has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one instructable kind of suffering. हम्म, अब क्या है यहाँ पे? After 7 days, he got enlightenment under the people tree, and that tree was known as that tree. क्या नाम दिया गया? बोधि ट्री. बोधि का मतलब क्या है? तो विजडम मीन्स नॉलेज हासिल होना, एनलाइटमेंट मिलना उसको, उनको जो ज्ञान चाहिए था वो उनको मिला. So and began to teach and to share his new understanding. At that point, he became known as the Buddha, the awakened or the enlightened. Enlightened means उनको ज्ञान प्राप्त हो गया. जो क्वेश्चंस वो चाहते थे, जिनका आंसर मिले उनको, वो मिल गया. द बुद्धा प्रीच का मतलब क्या है? प्रीच करना. जब ये जो सेंट होते हैं, जो प्रचार करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उन्होंने सरमन, ये जो रिलीजियस या मॉरल टॉक है, लोगों के भले के लिए या फिर भगवान के बारे में बताने के लिए, या कोई लेक्चर दिया जाता है. जैसे ये क्या है कि जैसे बहुत गुरु लोग आते हैं तो क्या है कि टॉक करते हैं ना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो होता है सरमन. कहाँ पे? बनारस की सिटी में, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस. रिवर गंगा वहीं तो है ना, जिसको हम गंगा बोलते हैं. एक्चुअली गैंजेस जो है इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, जहां पे लोग जाते हैं, ठीक है. दे डिप प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस. दैट सरमन. सरमन का मतलब क्या है? अगेन मैं बता रही हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरमन? सरमन का मतलब क्या होता है? कि रिलीजियस लेक्चर दिया जाता है, जब प्रचार किया जाता है, हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, यहीं पे दिया जाता है. इससे पता चलता है कि बुद्धा की विजडम अबाउट वन अनस्क्रूटेबल समथिंग विच कांट बी. इससे जो उनको ज्ञान मिला था, भी उस चीज के बारे में उनको ज्ञान मिला जिसको समझना बहुत मुश्किल था, उनको उनका आंसर मिल गया था. हम इस चैप्टर के बारे में क्या क्या पढ़ रहे हैं? हम इस चैप्टर में कि लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, कब वो बॉर्न हुए. ठीक है, उनको बहुत ज्यादा एक रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए. व्हेन ही वाज बॉर्न, तो प्रेडिक्शन करेगी वो तो इधर रूलर बनेंगे या तो फिर वो एक सेंट या मॉन्क बनेंगे. तो इसलिए उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाने दिया. ऑल्दो ही गॉट मैरिड, सन नेम्ड राहुल. राहुल था उनके बेटे का नाम. सिद्धार्थ उनका नाम था. यशोधरा उनकी वाइफ का नाम था. उनको बड़ा प्रोटेक्ट किया गया. बट एक बार उन्होंने 4 लोगों की साइट जो देखी, व्यू देखा, एंड हिज हार्ट मूव्ड. कौन कौन था? हाँ जी, 4 लोगों की कौन सी साइट देखी थी उन्होंने? क्या व्यू देखा उन्होंने? हु विल टेल मी? अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. टर्न ऑन योर कैमरा. कैमरा ऑन रखो. क्लास से बाहर जाने वाले हो बाप? हाँ. कुणाल, unmute yourself. So what do you know about Lord Buddha? What is the meaning of Buddha? Unmute yourself. Kunal, I am asking you, beta. Kunal, I am asking you. Pranjal Sahu, unmute yourself, beta. Pranjal Sahu, unmute. Yes, ma'am. So what we are learning in this chapter, what you have understood till now, क्या समझा आपने? Ma'am, we are learning about Gautam Buddha, who was born on a uh, born as a born in ruler's family, and and he was sent for schooling for 10 years. After that, he got back to his home, and When he came back, he got married. yes, ma'am. Yeah, when he got back, he got married, and then they had a child named Rahul. And after at the age of 25, he saw 4 conditions, like a sick man and aged man, and a funeral and a monk.
Then he realized the reality of life. Then he leave his house and decided to be a monk. He decided to be a monk. What did he decide? He decided to be a monk because he wants to get answers of all the questions. I mean, how many sites did he see? How many? So he came across an aged man, right? Aged man देखा उसने और कौन? Sick man and funeral procession. Finally a monk. Finally a monk. तो क्या हुआ? His heart moved. Then what did he decide? He decided to get answer of all the questions. Beta, am I audible? Can you hear me? Okay, till now we have done only 2 slides. Any issue, any query in these 2 slides, you are free to ask me. Please turn on your camera. Naman, Vansh Rana, Ujjwal Kapoor, बलजिंदर सिंह सिद्धू. हाँ जी, और बताइए कुछ इशू आ रहा हो आपको किसी चीज में. ये चैप्टर समझ में आ रहा है? सो सिंपल, पढ़ा भी होगा आपने. प्रांजल साहू, आर्यन सैनी, आप पढ़िए. अनम्यूट करिए और वीडियो ऑन कर रखो. वीडियो ऑन रखो, जल्दी करो. आर्यन सैनी, अनम्यूट योरसेल्फ. Kisa Gautami had an only son, and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." At length, Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can." And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "To go to Inderjeet Sakya Singh, Muni, what are you doing? Sorry, the interrupt you. Buddha." Kisa Gautami repaired to the Buddha and cried, "Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy." Kissa Gautami. Here what we are going to read, here we are going to read about Kissa Gautami. What happened to her? Her son died, okay? And she was almost mad. Son died. In her grief, she was in utmost grief. She carried, अब dead child को neighbors के पास लेके जा रही है medicine के लिए. People said, now he has lost his senses. The boy is dead. अब जो बच्चा है वो मर चुका है. At length, काफी दूरी पे, far. Kissa Gautami met a man who replied to her request. उसने रिक्वेस्ट करी तो उसने जवाब दिया, आई कांट गिव दी का मतलब यू. अपनी बुक्स खोल के रखा करो, मार्क किया करो. दी मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड. थाई मीन्स योर, दी मीन्स यू. कि मैं क्या है कि मैं मेडिसिन नहीं दे सकता. बट आई नो फिजिशियन, मैं लेकिन एक फिजिशियन को, वैद्य को, चिकित्सक को, लाइक डॉक्टर, मैं एक बता सकता हूँ. एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी, मुझे बताइए, हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सक्यामुनि द बुद्ध. अब वो बुद्ध का नाम दे दिया उन्होंने. किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्ध. रिपेयर्ड का मतलब क्या है? वेंट टू. तो वो किस्सा गौतमी ने क्या किया? वो गई एंड क्राई, बहुत रोई. लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. क्योर का मतलब क्या होता है? ऐसी मेडिसिन दो जिससे मेरे बच्चे को काफी फर्क पड़ जाए और उसको बीमारी से छुटकारा मिल जाए. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे मस्टर्ड होता है ना, सरसों, उसके कुछ सीड्स चाहिए. I want seeds. And when the girl in her joy promised to procure means obtain. जब उसने बोला ओके मैं ले आऊंगी, तो बुद्धा ने मस्टर्ड सीड मस्ट बी. लेकिन सुनो, ये मस्टर्ड सीड कहां से होने चाहिए? ऐसे घर से जहां पे कोई डेथ ही ना हुई हो, जहां पे कोई बच्चा ना मरा हो, हस्बैंड ना मरा हो, पेरेंट ना हो, कोई फ्रेंड ना हो. Poor Kissa Gautami now went from house to house. घर घर गई वो. And the people pitied her and said, लोगों ने ठीक है, बहुत ज्यादा उनको बहुत दया आई. ठीक है, here is mustard seed, take it. वो कह रहे ठीक है ले लो, mustard seed की बात है, you can take it. But when she asked, did a son or daughter, father or mother die in your family? वो जब वो पूछती है कि क्या कोई son,
कोई डॉटर, कोई मरा है फैमिली में? दे आंसर्ड हर, अल्लाह द लिविंग आर फ्यू। अब वो कह रहे बच्चे ही बहुत कम है, बट द डेड आर मैनी। मरे हुए लोग ज्यादा हैं लेकिन जो बच गए वो कम। कोई घर नहीं हो सकता जहां पे किसी की कोई मौत ना हुई हो। डोंट रिमाइंड अस ऑफ अ डीपेस्ट ग्रीफ, एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे कोई मरा ना हो। नेक्स्ट इज, हाँ जी, कौन पढ़ेगा? कुणाल, अनम्यूट योरसेल्फ, नहीं तो क्लास से बाहर जा सकते हो आप। हाँ जी मैम। हाँ जी, पढ़िए बेटा। Kisa Gotami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of man, and their lives flicker up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I? My grief, death is common to all, yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain for there. हाँ जी, क्या समझ में आया? What did you understand? देखो जरा, दिस इज सो सिंपल। शुड आई आस्क फ्रॉम यू? गो थ्रू इट वंस। पढ़िए, रीड इट। यू कैन रीड इट साइलेंटली। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ जी, चलो। किस्सा गौतमी बिकेम वेरी, एंड वेरी मीन्स टायर्ड, बहुत होपलेस हो गई, एंड सैट डाउन एट द वे साइड, रोड की जो एज है, किनारा है, वहां पे बैठ जाती, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, सिटी की जो लाइट्स हैं उनको देखती है, एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश, अब लाइट चल रही हैं, बुझ रही हैं, ट्विंकल करना, फ्लिकर्ड अप मीन्स ट्विंकल। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, सब जगह डार्कनेस हो जाती है, एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड एक्सटिंग्विश। ऐसे ही इंसान की जिंदगी है, कभी बुझ रही है, चल रही है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, थॉट टू मतलब मन ही मन में उसने सोचा, ये चीज सोची, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितना सेल्फिश होगी। सो डेथ इज कॉमन टू ऑल, death is bound to happen. Shakespeare has rightly said, death is bound to come to everybody. Death is bound to come to everyone. Death spares nobody. So death spares nobody. तो जो death है कभी भी किसी को नहीं छोड़ती है। जो इंसान पैदा हुआ है उसने मरना है एक ना एक दिन, चाहे वो 100 साल जिए, चाहे वो 80, चाहे वो 50. Everyone has to die one day. So she understood. Yet in this valley of desolation means an area which is filled with deep sorrow, there is a path and that leads him to the immortality who has surrendered. एक होता है man is mortal, इंसान क्या है? mortal है, नाशवान है, क्योंकि डेथ सबको आती है, जो चीज पैदा हुई है खत्म होगी। इमॉर्टल क्या होता है? जो चीज कभी मरती ही नहीं। और क्या नहीं मरती है? वो सोल होती है। ठीक है। Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान जो है इमॉर्टल हो। अब वो बहुत ज्यादा डीप सौरो में भर गई। कोई इंसान तो ऐसा है ही नहीं, इतना ज्यादा सौरो उसको लगा, इतना ग्रीफ था कि वो सोच रही थी कोई इंसान मर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं है। सो द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो इंसान की जिंदगी है ना, स्पेशली मॉर्टल्स, जो इंसान नाशवान है, तो उसकी जिंदगी क्या है? दुखों से भरी हुई है, सॉरोज, छोटी भी है, ब्रीफ भी है, और पेन के साथ कंबाइंड भी है। फॉर देयर is not any means by which those that have been born and can avoid dying after reaching old age there is death. ऐसा कोई नहीं है जो पैदा हो और कभी मरे ही ना हो। ओल्ड एज आ गई तो समझो इट मीन्स मैन इज नियर टू डेथ। कितना जी लोगे? ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग्स, राइप एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर। अगर कोई राइप फ्रूट है, बहुत पक गया, ऑब्वियस है ये जमीन पे ही गिरेगा ना। ऐसे ही ओल्ड एज है। ओल्ड एज का मतलब क्या? इंसान पक गया अच्छे तरीके से,
मीन्स ही हैज एंजॉयड हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, बहुत ही लाइफ उसने एंजॉय कर रही है. सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न एंड ऑलवेज, जो मॉर्टल्स हैं, देखो जो चीज लिविंग बीइंग है वो क्या है, मॉर्टल है, वो हमेशा हर किसी को मौत का खतरा रहता है. एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, एंड इन अर्दन वेसल्स क्या होते हैं, जिसको आप छोटे छोटे वो पॉट से होते हैं ना, जो पॉटर बनाता है, क्या बोलते हो आप उसको हिंदी में, व्हाट डू यू से, सुराही होगी या छोटे छोटे से घड़े हो गए, वो बनाते हैं. तो एट लास्ट क्या है, टूट ही जाते हैं ना, मिट्टी है, कहीं ना कितनी देर संभालोगे, टूटेगी वो. सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल, ऐसे ही इंसान की जिंदगी है, कितना जी लेंगे, एक ना एक दिन सबने मरना है. बोथ यंग है चाहे वो अडल्ट है, बोथ दोज हु आर फूल है, जो बहुत ज्यादा वाइज है, बड़ा इंटेलिजेंट है, ठीक है, इंटेलिजेंट पर्सन है उसने भी जाना है, फूल है उसने भी जाना है, सबने ही जाना है. सो डेथ इज बाउंड टू हैपन एवरीवन, डेथ इज बाउंड, डेथ स्पेयर्स नोबडी, डेथ स्पेयर्स नो वन. तो जो डेथ है वो किसी को नहीं छोड़ती. तो शेक्सपियर ने रियली ही कहा है, डेथ स्पेयर्स नो वन, किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो बहुत ज्यादा अमीर है गरीब है, एंड फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. वही बात आ गई, जो मौत है उसको टाल नहीं सकते तुम, जो है आनी है आनी है, ठीक है. एट लास्ट, of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, no kinsman means near and dear ones, आपके dear ones है. जब कोई इंसान मर रहा होता है, क्या आप उसको बचा सकते हो, कैन यू सेव दैट पर्सन, नो. एक जो फादर है वो अपने सन को सेव नहीं कर सकता, सन अपने फादर को सेव नहीं कर सकता. while relatives are looking on and learning, lamenting का मतलब क्या है, लेमेंट का मतलब एक, जब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा लेमेंट करते हो, शोक प्रकट करते हो, वन बाय मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स, दैट इज. अब क्या, जैसे ऑक्स है, ऑक्स को एक स्लॉटर, एक ऑक्स है, बल्द है, जब उसको एक कसाई लेके जाता है, कसाई घर में उसको काटने के लिए ले जाया जाता है, ऐसे ही तो इंसान के साथ. सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड मीन अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज, पेन. इंसान की जिंदगी क्या है, बहुत ही ज्यादा एफ्लिक्टेड है. तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डेथ से बच सके. एंड डेकी देयरफॉर द वाइज डोंट ग्रीव नोइंग द टर्म. ये जो सच में बहुत अच्छे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो क्या है, वो इस चीज के बारे में बहुत सोचते नहीं है, ठीक है, इस चीज पे शोक भी प्रकट नहीं करते हैं. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन, ना तो रोने से ना ही इस शोक प्रकट करने से आपको माइंड जो ऑफ माइंड मिलेगा. ऑन द कॉन्ट्री मीन्स ओपोजिट. वॉज इट ओपोजिट, ओपोजिट क्या है, आपकी जो पेन है बढ़ जाएगी, बॉडी सफर करेगी, पेन बढ़ेगी, मेंटली आप डिस्टर्ब होगे तो फिजिकली अपने आप ही आप डिस्टर्ब होगे. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. पेल का मतलब येलो, मतलब इंसान तब पेल दिखता है जब वो बीमार हो. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय अस. कोई बचा तो कोई नहीं सकता ना. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow has become composed. जिसने इस चीज को समझ लिया उसने अपना पीस प्राप्त कर लिया, ठीक है. जो लाइफ है बाकी की अच्छे तरीके से लीड करो. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. जिसने ओवरकम का मतलब क्या है, किसी चीज पे काबू पा लेना, किसी चीज को कंट्रोल में ले आना. और ये कहां से लिया गया है, बेटी रेंशॉ, वैल्यूज एंड वॉइसेस. हाँ जी बेटा जी, समझ में आया. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था चैप्टर ये, द sermon एट बनारस. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.